Hello. So we are going to start with two sums of simplex. I'll take the first sum. I've already made the tables and everything so that we can save our time. Okay. So you can see this. We solved this question yesterday through graphical method, and after solving it by graphical method, we got some answers. Okay. I've already put the answers, all the coordinate points, everything. Yesterday what we were doing is we were trying to solve this question by a method which is called as simplex. Yeah, simplex method. So we will try to use simplex method to solve this question. Okay. So for simplex method, what did I say? We have to introduce slack variable depending upon the constraint equation. So if I look at the first constraint equation, 2x1 plus 5x2, okay, we can see here, okay, this is less than equal to. So if this is less than equal to, we can write plus s1 is equal to 30. Okay. Next equation, what we can write for 7x1 plus, this color is not visible. That's why I'm taking red color, that annotation, that point is not visible to me. Yes, I can see this color. Okay. So what I'll write for second point is this part. 1 second. For this 7x1 plus 2x2, what I'll write is 7x1 again plus 2x2 less than equal to है. So if it is less than equal to, it will again come as plus s2. This will be equal to 24. The third equation that is there is 4x1 plus 3x2. So we will write it 4x1 plus 3x2. Again it is less than, so it will come as s3 is equal to 20. Okay. So if we have written all the terms, now what we will do is we will try to write. Now there are how many variables right now? We can see the number of variables right now are 2, x1 and x2, and 3 more variables which are slack variable. So in total there are 5 variables. So what I have to do next is I have to rewrite the equation in terms of all the variable. I have to rewrite all the equation in terms of all the variable. Since we are starting with this topic, it's important to rewrite it. So first equation what I'll write is 2x1 plus 5x2 plus 1s1, right, plus 0s2 plus 0s3 is equal to 30. Okay. Next equation what I'll write is, what is the equation? Yeah, 7x1. This is x2 na, 2x2, yeah. 7x1 plus 2x2 plus 0s1 plus 1s2 plus 0s3 is equal to 24. Is there anyone who is asking something in the chat? If you are late, I can't help. Okay. How many have joined? 20 have joined. Now we will go to the next equation. What was that equation? Yeah. What is this equation? 4x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 1s3 is equal to 20. So I have rewritten all the equations. Okay. After rewriting all the equation, I have to rewrite z also. Okay. So how can I rewrite z? This was my original z. So I will try to rewrite z in terms of x1, x2 and all the slack variables. So z will become as 18x1 plus 15x2. Z should not be contributed by slack variable. Presence of slack. Who is there in the chat? Just let me see whether I am recording or not. Yes, I am recording, not an issue. Okay. 18x1 plus 15x2 in for Z should not be contributed by the use of slack variable. So I will write 0s1 plus 0s2 plus 0s3. So I've written all the things. Okay. Now these variables, the variables of Z are called as C, are called as coefficients of Z. Okay. And these variables are represented by Cj. How do we represent them? We represent all these variables as C1, C2, C3, C4, C5. Coefficients of this variable are represented by Cj. So how do we start this table, simplex table? We first write Cj at the top. Okay. So whatever are the values of Cj, we will write. What is the value of Cj? For x1, it is 18, the coefficient value, then it is 15. Okay.
15. The next value is how much? 0. Another value is again 0, and another value is again 0. Now, what is the variable? What is the variable associated with 18? It is x1, then it is x2. What is the variable associated with s1? You can even see it in this equation, the equations that we have formed. It should be aligned. Matlab S1 should come after S2, then it should come after S3. You can even vary, but since you are keeping S1 first, S2 first, S3 first, second, and S3 third, you have to keep this order for all the equation. If you are putting S2 first, then for the second equation, you should also put S2 first. So since I am putting S1, S2, S3 in sequence, so what I'll put here is S1, then I'll put S2, and then I'll put S3. Even if you have studied this in your maths, the way I am going to teach you will not be taught to you, at least even in the online lectures or even in your textbooks. This method was taught to me by one of my professor. He was even my HOD. His name was Sanjay. Okay, Sanjay Kumar sir. He taught me this method, and this method is helpful for all the linear programming problems. And this method is very beneficial, and it will not require any matrix multiplication. If you have studied it in your maths, you know that there is some kind of matrix multiplication. This method tries to simplify that matrix multiplication. It does the matrix multiplication, but it does not do it in the conventional form. It does it in the short form. Okay, so we have written this thing. Now what we will do is, we have written these things. Okay, we could have written this thing here also. Since I've given some space, I'll write this variables as here. 1 second. Where is my cursor? Okay, I'll write here x1, then I will write x2, then I'll write s1, then I'll write s2, and then I'll write s3. Okay, I've written all the variables. Now what I'll do is, I will put the value equation coefficients. What are the equation coefficients? You can see this was my first equation. So what are the coefficients? It is 2, 5, 1, 0, 0. So I will put 2, 5, 1, 0, 0. Next equation, you can see, you can put any equation first, any equation second, it depends upon you. But the way I am putting, just look at this, then you will understand how to put it. So the second equation will be like 7, then it will be 2, then it will be 0, 1, 0. Okay. The next thing that you can see is the third equation that we have written here. The third equation, you can see, the third equation has 4 in x1, 3 in x2, then 0 in s1, 0 in s2, then 1 in s3. Okay. Now these values, the values that we have put here, 1 second, the values that we have put here, these values are called as zj. What do we call it as? Zj. Matlab z1, z2, z3, this all are called as zj. Okay. Matlab this column will be called as z1, this column will be called as z2, this column will be called as z3, this will be called as z4, and this will be called as z5. So what we can write here is one value, the coefficients of that objective function was called as Cj, and the coefficients of the equations are called as Zj, but they are called in terms of x1 when you are taking all the x1 values of all the equation together. Okay, I am taking the x1 value of first equation, second equation, and third equation. These values coefficients are called as Z1. Okay, so this will be called as Zj, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Similarly, okay, I'll just rub this thing so that we can keep the things clear. Okay, I hope you're getting what I'm trying to explain. Some things are called as Zj, some things are called as Cj. Just give me a second so that I can rub. I am not able to delete this thing. If there is any doubt, let me know in the chat box. Okay, these values are called as Zj. This is required just in initial problem. You should know what is Zj and what is Cj. Andar mat aao. This is called as Zj and this is called as Cj. Okay, now what we will do is, I would like to say you something. Can you see an identity matrix? Can you see an identity matrix in this three rows? Can you form an identity matrix? I'll just unmute you. Can everyone see or anyone see identity matrix? Can you see identity matrix? Yes, sir. Yes, sir. S1, S2. So listen, the variables which are forming identity matrix, those variables are called as slack variable. What do we call them as? Slack variable. Okay. Always the slack variable will form identity matrix in simplex method. In another term, there is another name for this slack variable. The variable which form identity matrix are called as basis variable. This will be more precise.
Rather than calling them as slack variable, what we will, slack is something which is added into the equation. Now what I am saying, the variables which are forming identity matrix, those variables are called as basis variable. Okay, and you always start your solution with basis variable. Okay, the variables, I'm again repeating, the variables which form identity matrix, those variables are called as basis variable, and you always start your equation with, or solution, first iteration with basis variable. So I can see which one is my basis variable, S1, S2, S3. Which one is forming the first row, 1, 0, 0. You can see this way, 1, 0, 0, then this is 0, 1, 0, then this is 0, 0, 1. So if it is forming identity matrix, this will be my first variable, this will be my second variable, and this will be my third variable. So what I'll do is I will write here S1, S2, and S3. Since I have to start my solution with basis variable, and basis variable are those variables which are forming identity matrix. So what I have to do to start the iteration, I have to put these values or put this coefficients, put this variable here. Okay, those who are forming which identity matrix, those who are forming identity matrix. Now I know the value of this identity matrix in Z. Can you see the value of this in Z? वेरिएबल का वैल्यू क्या है Z में? इसका वैल्यू है 0. Z में बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू भी क्या है 0, इसका वैल्यू भी क्या है 0. ओके ओके, नाउ व्हाट डू यू डू? We need to find Zj minus Cj. What do we need to find? We need to find Zj minus Cj. Now I will say you what is Zj minus Cj. 0 into 2 is Zj. Okay, Zj is what? 0 into 2. So 0 into 2 will be 0. ठीक है, तो I got first value of Zj 0. 0 into 2 0. 0 minus 18 will be how much? Minus 18. Okay, now I will find the next value. One minute. How to find Zj? 0 into 2 plus 0 into 7 plus 0 into 4. All will be equal to 0. Okay, this 0 minus this value 18. 0 minus 18 will give me how much? Minus 18. This is the way we find Zj. Now, the next Zj minus Cj we need to find. So for that we need to find Zj. So 0 into 5 plus 0 into 2 plus 0 into 3. I hope you're getting. So this will be 0. 0 minus 15 will be how much? 0 minus 15 will be how much? Minus 15. Next again 0 into 1, 0 into, again 0 into 1, then 0 into 0. Then you can again see 0 into 0 is 0. Total is 0. 0 minus 0 will be how much? 0. Again you can say, since we are multiplying 0, since we are multiplying, kahan hai cursor? Yeah. Since we are multiplying 0, this value will always be equal to 0, Zj. Zj for the first iteration will be 0. So 0 minus 0 will again be 0. Again 0 minus 0 will be again be 0. So we have got some value. Have you understood till here? Yes, sir. सर Yes, जो sir. Zj का वैल्यू जो है वो इक्वेशन है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? नेटवर्क में आओ. Shahzad, put your question in the chat box. Put your question in the chat box. Put your question in the chat box. जो वैल्यू Question in the chat box. वो Z1 Z2 Z3 है ना? Put your question in the chat box. We'll move forward. This side is called as RHS. There is some chat. Let me respond to the chat. सर Zj की वैल्यू Z1 Z2 होगा ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, Z will be equal. Z अगर तुमको फाइंड करना है ना, तो Z अगर तुमको फाइंड करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और उसको फिर माइनस करो Cj में से, तो आपको Z मिलेगा. मतलब Z1 Z2 Z3 जो भी Z है ना, मतलब ये अगर हमारा Z1 इंडिकेट करता है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल Z मिलेगा आपको. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करो और फिर उसको माइनस करो Cj में से. ओके, 1 सेकेंड. ओके, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, RHS. अब मुझे अपना RHS देखना है. सब इक्वेशन का RHS देखो. इसका RHS कितना है? 30. इसका कितना है? 24. इसका कितना है? 20. तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर. मैंने यहाँ लिखा है RHS. आई विल जस्ट चेंज दैट थिंग.
I'll put here RHS. I can put here RHS. RHS में पहला इक्वेशन का वैल्यू क्या है 30, दूसरे इक्वेशन का वैल्यू क्या है 24, तीसरे इक्वेशन का वैल्यू क्या है 20. One more thing I would like to clarify to you, RHS can never be negative. LPP में RHS कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो. वैसे नेगेटिव नहीं होगा, स्पेशल केस में नेगेटिव रहता है. तो जब भी RHS नेगेटिव रहेगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव. आप LPP में, बेसिक LPP में RHS को नेगेटिव नहीं रख सकते. नाउ आपको क्या करना है, आपने ZJ माइनस CJ फाइंड कर दिया, ठीक है, आपने RHS लिख दिया. अब क्या करना है आपको, ये देखो, पहला देखो दिस, पहली इसमें से वैल्यूज देखो, -18, -15, 0, 0, 0. Which one is the most negative? सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है? -15 से बड़ा नेगेटिव क्या रहेगा? -18. करेक्ट ना? 18 वैसे बड़ा रहेगा, पर मोस्ट नेगेटिव जब मैं बोलूंगा तो माइनस जो 18 रहेगा वो मोस्ट नेगेटिव रहेगा या नहीं? तो ये जो सेलेक्ट होता है ना मोस्ट नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं पाइवोट कॉलम. क्या बोलते हैं हम उसको? पाइवोट कॉलम. कौन है यार? लेट मी सी चैट. ओके, शहजादी पूछ रहा है, ठीक है. व्हाट आई एम सेइंग, जो भी मोस्ट नेगेटिव रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट कॉलम. ठीक है, तो हमको पाइवोट कॉलम सबसे पहले मिल जाएगा. अब क्या करने का, ये जो पाइवोट कॉलम की वैल्यूज है ना, जो हमको दिख रही पाइवोट कॉलम की वैल्यू, RHS को पाइवोट कॉलम से डिवाइड करने का. RHS को क्या करने का, पाइवोट कॉलम से डिवाइड करने का, और यहाँ पे लिखने का, जिसको हम बोलते हैं टीटा. क्या बोलते हैं हम इसको? टीटा. टीटा इज नथिंग बट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टीटा इज नथिंग बट डिविजन ऑफ RHS बाय पाइवोट कॉलम. ओके, अगर मैं RHS को पाइवोट कॉलम से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टीटा. याद रखना, पाइवोट कॉलम कैसे मिलेगा, ZJ माइनस CJ में जो मोस्ट नेगेटिव रहेगा उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद जो RHS है उसको वो वाले पाइवोट कॉलम से क्या करो, डिवाइड करो. ठीक है, तो 30/2 हम देख सकते हैं. 30/2 कितना रहेगा बेटा? 30/2 विल बी 15. नेक्स्ट 24/7, कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली. 24/7. नेक्स्ट 20/4, 20/4 will be how much? 5. Now we can see that we have got three values. One is 15, another is 24/7, and another one is what? Another one is 5. So we can see we have got three values. अब देखना इसमें से लीस्ट पॉजिटिव क्या है. क्या देखना है? लीस्ट पॉजिटिव. अब देखो 15, 5, 24/7 will be around 3 point something. तो इसमें से लीस्ट पॉजिटिव क्या है? एक सेकेंड, या इसमें से लीस्ट पॉजिटिव क्या रहेगा बेटा? ये रहेगा हमारा लीस्ट पॉजिटिव. तो जो भी वैल्यू टीटा में लीस्ट पॉजिटिव रहेगी, उसका जो वेरिएबल रहेगा, देखो उसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है उसका? S2. तो वो वेरिएबल लीव कर देगा. क्या कर देगा? सॉल्यूशन, आइट्रेशन को छोड़ देगा. और ये जो पाइवोट कॉलम है ना, पाइवोट कॉलम, उसका वेरिएबल क्या है? क्या है उसका वेरिएबल? X1. वो उसकी जगह एंटर करेगा. कोई चैट में कुछ लिख रहा है बेटा, प्लीज चैट मत करो अभी. हाँ, 3.42. थैंक यू. मुझे ये पता चल गया तीनों में से लीस्ट कौन सा है. तो जो लीस्ट रहेगा ना, जो भी लीस्ट रहेगा वो सॉल्यूशन को लीव करेगा. तो S2 क्या करेगा? लीव करेगा. और जो पाइवोट कॉलम रहेगा वो S2 की जगह एंटर होगा. तो देखो मैं क्या करूंगा, S1 एज इट इज रहेगा, S2 लीव कर रहा है तो कौन एंटर हो रहा है? X1 एंटर हो रहा है, और S3 क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा. कंफर्म? S3 क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा. तो अब मैं आ गया हूं सेकेंड आइट्रेशन में. ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको, प्लीज अनम्यूट कर रहा हूं. तो प्लीज एक ही चीज पर ध्यान देना कि आप, अगर आवाज है आपके बैकग्राउंड में तो उसको बंद करना. पहले में मुझे ये बताइए, बेसिस वेरिएबल पहले आइट्रेशन में क्या था? एनीवन? आई वांट सम अदर पर्सन्स वॉइस. सेम पर्सन नहीं रिपीट करना चाहिए, कोई और बोलो. पहले में बेसिस वेरिएबल क्या थे? एनीवन? जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसके. तो बेसिस वेरिएबल S3 थे जो आइडेंटिटी बना रहे थे, बराबर? यस सर. अब दूसरे में बेसिस वेरिएबल चेंज हो गए कि नहीं? S1 आ गया, X1 आ गया, S3 आ गया. तो वही डेफिनेशन से ये तीनों को भी आइडेंटिटी बनाना चाहिए या नहीं? ये तीनों को आइडेंटिटी बनाना चाहिए या नहीं? यस और नो? यस सर. यस. वेरी नाइस. तो अब देखो, S1 पहले नंबर पे है तो S1 की जगह क्या आएगा? 1, 0, 0. X1 सेकेंड नंबर पे है तो X1 की जगह आएगा 0, 1, 0. गेट इट राइट? मैं नंबर वाइज सीक्वेंस करूंगा उसको. S3 थर्ड नंबर पे है तो S3 की जगह क्या आएगा? 0, 0, 1. डन. एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या बतानी है, ZJ माइनस CJ. देखो बेसिस वेरिएबल का ZJ माइनस CJ देखो खास था कुछ, क्या था? देखो 0, 0, 0. करेक्ट?
0 0 0। तो मैं ये बताना चाहता हूं बेसिस वेरिएबल का zj माइनस cj कोई भी आइट्रेशन पे 0 0 0 ही रहता है। बेसिस वेरिएबल का zj माइनस cj कोई भी आइट्रेशन में 0 0 0 रहता है। तो ये zj माइनस cj है या नहीं बेसिस वेरिएबल का? zj माइनस cj रहता ना, तो zj माइनस cj ये बेसिस वेरिएबल का 0, ये बेसिस वेरिएबल का 0, ये बेसिस वेरिएबल का 0। गेट इट वेरी राइट व्हाट आई एम सेइंग। अब इसको चेक करके देखते हैं। देखो S1 का Z में वैल्यू क्या है, एक सेकेंड यार, S1 का Z में वैल्यू क्या है 0, X1 का Z में वैल्यू क्या है बेटा, X1 का Z में वैल्यू कितना है 18, करेक्ट ना, कितना है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग, 18 है। S3 का क्या है बेटा 0, राइट, करेक्ट। अब हम ZJ माइनस CJ करके देखते हैं। ये देखो 0 इंटू 0 कितना होगा 0, प्लस 18 इंटू 1 कितना होगा 18, 0 इंटू 0 कितना होगा 0, तो 0 प्लस 18 प्लस 0 18 हुआ। 18 में से CJ माइनस करके देखो, 18 माइनस 18 आ रहा है कि नहीं 0, ऑटोमेटिक 0 आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अपना ZJ माइनस CJ निकालते, देखो 0 इंटू 1 18 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 रहेगा, 0 माइनस 0 क्या है बेटा, अगेन देखो 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन 0 इंटू 0, 18 इंटू 0, 0 इंटू 1, अगेन क्या आ रहा है 0, 0 में से क्या माइनस किया CJ क्या है 0, तो फिर से क्या आ रहा है 0। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, इज इट ओके? We will take time, even if we complete one question it is more than enough. Is it okay? Awesome. Okay, can we proceed? Can we proceed? Everyone? हेलो Yes, yes. सर x1 और s3 कैसे ले सर यहाँ पे पीछे यहाँ पे x1 और x3 जो वेरिएबल लीव करेगा, कौन सा वेरिएबल लीव कर रहा है पहले आइट्रेशन में? S1 लीव कर रहा है। पाइवोट कॉलम में क्या है x1 है ना, S हाँ माइनस 18 में S2 लीव कर रहा है, S2। हेलो अरे बेटा पहले में S2 लीव कर रहा है, कौन लीव कर रहा है देखो ना, कौन लीव कर रहा है, लीस्ट पॉजिटिव क्या है x2 ओके हाँ सर ओके s2 लीव कर रहा है, कॉलम से कौन अंदर आ रहा है x1। हाँ सर Okay, now we will get to the next part. Please mute yourself. I am not muting so that you can ask doubt. Just excuse me बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है, बराबर। जो खाली जगह है वो सब हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। जितनी भी खाली जगह है वो हमको क्या करनी है, भरनी है। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहो, ये खाली जगह भरनी है, ये खाली जगह भरनी है, ये खाली जगह भरनी है, ये भी खाली जगह भरनी है। ये खाली जगह भी भर सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे। 0 इंटू 20, ये दिख रहा है ये 0, 0 इंटू 30 क्या रहेगा 0। फिर देखो 0 इंटू 24 क्या रहेगा 0, 0 इंटू 20 क्या रहेगा 0। RHS का तो कोई राइट साइड होता ही नहीं, क्योंकि जो भी Z है उसमें तो इक्वल टू कुछ भी नहीं है ना, इक्वल टू Z है, तो उसका RHS क्या रहता है 0। तो 0 माइनस 0 अगर मैं करूं, क्या करूं 0 माइनस 0, तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 0, करेक्ट। ये वाली क्या वैल्यू मिल रही है मुझे 0, तो वो ऐसी रहने देते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं, आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी खाली जगह है वो सब हमको भरनी है। तो अब ये भरते हैं। भरने से पहले क्या करने का, ये देखने का, ये है हमारी, दिख रहा है ये है हमारी पाइवोट रो, क्या बोलते हैं इसको, पाइवोट रो, ठीक है। और ये है हमारा पाइवोट कॉलम, बताया था ना। ये स्ट्रेट वाला जो है अपना ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, पाइवोट कॉलम। तो दोनों का कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल क्या है दोनों में, पाइवोट रो और पाइवोट कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पाइवोट रो और पाइवोट कॉलम 7 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं की एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, की एलिमेंट, ठीक है। क्या करने का, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। हमेशा याद रखना नेक्स्ट आइट्रेशन में की एलिमेंट होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1। तो देखो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वाली जगह 1 होनी चाहिए, मैंने तो पहले ही लिख दिया 1 है, बराबर। मेरे को तो पहले ही पता चल गया, जुगाड़ से मैंने पता कर लिया कि वो 1 है। बट सपोज को अगर तुम्हें नहीं पता रहता तो तुमको अगर इसको 1 करना है, सॉरी, तुमको अगर इसको 1 करना है तो उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं। अगर तुमको उसको 1 करना है, ये वाली वैल्यू को तुमको अगर 1 करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो 7/7 क्या होता 1, 2/7 क्या होगा 2/7, 0/7 क्या होगा 0, करेक्ट। 1/7 क्या होगा 1/7, अगेन 0/7 क्या होगा बेटा 0, 24/7 क्या होगा 24/7। तो देखो ये वाला कॉलम आ गया है, रो आ गया है नहीं,
मैंने डायरेक्ट रो निकाल ली। आई होप यू आर गेटिंग। इसमें से कुछ वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता चल गई जुगाड़ से। मुझे कैसे पता था? मुझे पता है स्लैक वेरिएबल का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना, स्लैक वेरिएबल का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना, वन वो आइडेंटिटी फॉर्म करना स्लैक वेरिएबल। तो मैंने कुछ वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, पर कुछ वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ी। तो फाइंड करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहाँ है यार कर्सर, कहाँ जा रहा? हाँ, फाइंड करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो हमारा की एलिमेंट रहेगा वो नेक्स्ट आइटरेशन में 1 होना चाहिए। तो उसको अगर मुझे 1 करना है तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे ये वाली वैल्यू सपोज करो फाइंड करनी है, दिख रहा है ये वैल्यू? तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जाने का, गए यहाँ पर। अब देखो की एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 इंटू 5 दिख रहा है ये? 7 इंटू 5 कितना होगा? 35 माइनस इसके पैरेलल जो वैल्यू रहेगी ना की एलिमेंट को, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 7 इंटू 5 35 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई 31। इसको डिवाइड कर दो की एलिमेंट से। किससे डिवाइड कर दो? की एलिमेंट से। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद किससे डिवाइड कर दो? की एलिमेंट से। तो आपको ये वाली वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। समझ रहा है? तो मैंने क्या किया देखो, 7 इंटू 5 minus 2 into 2 divide by 7. So what I am getting is 31 by 7. Okay. Now this value I need to find. ये वैल्यू, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे गया। अब इसके लिए हमेशा की एलिमेंट को पहले रखने का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसा करते थे वो छोड़ दो, हमेशा की एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू 4 कभी पहले नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 7 इंटू 3। तो 7 इंटू 3 इज 21, 21 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 21 माइनस 8 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 7. ओके, इज इट ओके? नेक्स्ट ये वाली वैल्यू फाइंड करना। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए कहां जाओगे? यहाँ पे जाओगे, गए। अब देखो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा की एलिमेंट को पहले। तो 7 इंटू क्या कर देंगे? 7 इंटू क्या करेंगे? 0। 7 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1। आई होप यू आर गेटिंग। माइनस 2 इंटू 1 कितना? माइनस 2 डिवाइड किससे करेंगे? की एलिमेंट से। तो ये कितना हो गया? माइनस 2 बाय 7। ओके, अब ये फाइंड करना है। ये फाइंड करना है तो कहां जाऊंगा? यहां पर जाऊंगा, दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 1। आई होप यू आर गेटिंग। दिख रहा है ये? माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो माइनस 4 को किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट और क्या फाइंड करना? ये भी फाइंड करना है, सब कुछ फाइंड कर लूंगा मैं। ये फाइंड करना ना, कुछ भी टाइम पास नहीं करूंगा। ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे जाऊंगा, दिख रहा है ये? तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 कितना? माइनस 105, करेक्ट। माइनस 105 माइनस, ये माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ। देखो 15 इंटू 7 माइनस के साथ, प्लस में क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस 18 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? माइनस 105 प्लस 36। कितना बचा? देखो कितना बचा? 69 माइनस 69 तो माइनस 69 को माइनस 7 से किससे डिवाइड करने का? की एलिमेंट। तो ये वाली वैल्यू भी मिल गई मुझे। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या मिल गई मुझे? सॉरी, क्या मिल गई? माइनस 69 बाय 7। अब ये फाइंड करना है, दिख रहा है ये कैसे मिलेगा? यहां जाऊंगा, क्या रहेगा? 7 इंटू 0 कितना रहेगा? 7 इंटू 0 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। 18 इंटू क्या आएगा? 18 इंटू 1, 18 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना? अरे प्लस हो जाएगा ना? माइनस 18 इंटू, यस यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 18 बाय 7। ओके ओके, इज इट ओके? यस सर। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। ये फाइंड कर सकते हैं आप लोग? फाइंड करो और मुझे बताओ कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करना है तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन वही एलिमेंट देखेंगे, 7। दिख रहा है ये 7? 7 इंटू 30 कितना होगा? 210। 210 माइनस क्या करूंगा? 48। कितना बचा? 162। 162 को किससे डिवाइड करूंगा? की एलिमेंट 7। फिर ये देखूंगा, ये दिख रहा है? दिख रहा है ये? के लिए यहाँ जाऊंगा या नहीं? तो 20 इंटू 7 140। 140 माइनस कितना होगा? देखो 96। कितना बचा? 44। ओके, तो दिस विल बी 44 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, आरएचएस कभी भी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता।
ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 7 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 18 इंटू 24, दिख रहा है ये 18 इंटू 24, तो 18 इंटू 24 करके देखो कितना है, 432 आ रहा है, 432 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 24 कितना आ रहा है, 432, डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। ओके, इज इट ओके? यस सर। इज इट ओके? यस सर। नाउ यही क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा साफ सुथरे तरीके से फिर लिखते हैं। तुम्हें इतना समझ में आ गया? अब आगे मैं तुमको बताते रहता हूँ, टेंशन मत लो, सिर्फ ये वैल्यू कॉपी करना है। क्या वैल्यू है मुझे बताओगे कोई? 25, मैं यहाँ अच्छे से लिखता हूँ तुम्हारे लिए, x1 x2 s1 s2 s3। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पहला इटरेशन क्या था, 2, हमारा काम कंप्लीट करना नहीं है, पहले बता रहा, समझ लो, 2 5 1 0 0, नेक्स्ट इज व्हाट, 7 2 0 1 0, नेक्स्ट इज व्हाट, बोलो, 4 3 0 0 1, राइट। और क्या लिखा था हमने, इसको पहले डिलीट कर देता हूं। I hope you are getting what I am doing. If there is any doubt, put it in the chat. I'll just see the chat, कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट CJ की वैल्यू क्या थी, हाँ वो याद है मुझे, CJ की वैल्यू क्या थी, 18 15 0 0 0, दिस वॉज कॉल्ड एज CJ। ओके, CJ। अब बेसिस वेरिएबल क्या रहता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस वेरिएबल। काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, सिर्फ थोड़ा साफ लिख देता ताकि तुमको आसान पड़े समझने। ओके, और RHS क्या था, 30 24 20। RHS क्या था, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, RHS was 30 24 20। Okay, now what I'll do is, just give me a second. Just give me a second. Okay. Give me a second so that I can extend the line properly. We are just about to end, don't worry. Is there any more lines? Yeah, एक लाइन और है स्टार्ट में, उसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, आगे सब हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं। ओके, वैल्यूज क्या क्या थी, पहला इटरेशन हो गया था ना, या पहला इटरेशन यहाँ तक हुआ था अपना, और क्या लिखा था, ZJ माइनस CJ, इसका कुछ आया था। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पहला इटरेशन का हमेशा ऊपर का माइनस रहता है, -18 -15 0 0 0, ये तो हमेशा 0 रहता है। पहले इटरेशन में RHS भी 0 रहता है, ये रहता है मेरा ZJ माइनस CJ। यहाँ Z के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखता हूँ S1 S2 S3 में। नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट मैंने ये वैल्यूज फाइंड की थी, इसका थीटा फाइंड किया था, करेक्ट ना। तो मैंने क्या फाइंड किया था, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और मैंने एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, या इसका हमने थीटा फाइंड किया था। थीटा क्या मिला था वो भी लिख देते हैं। थीटा क्या मिला था, इसके लिए देखा था, मोस्ट नेगेटिव क्या है, -18, तो 13/2 कितना हुआ था, पाइवोट कॉलम से डिवाइड किया RHS को, 15 आया, 24/7 आया, और कितना आया, 5 आया। तो ये पता चला कि लीस्ट नेगेटिव ये है, तो ये हो गया हमारा क्या क्या हो गया, हमारा की एलिमेंट। की एलिमेंट नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 1। उससे पहले मैंने क्या किया था, कौन लीव करेगा, S2, कौन एंटर करेगा, x1, तो S1 x1 S3 हो गया। नेक्स्ट क्या बोला था, S1 की जगह क्या रहेगा, 1 0 0, x1 की जगह क्या रहेगा, 0 1 0, ओके, 0 1 0, और S3 की जगह क्या रहेगा, 0 0 1, डन।
नेक्स्ट क्या बताया था, उसके बाद ऐसे ही रखूंगा और क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, ZJ माइनस, क्या लिखूंगा बेटा, ZJ माइनस CJ, फिर इसको लिखूंगा 0, इसको क्या लिखूंगा 18, इसको लिखूंगा 0। नेक्स्ट ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये सब मैंने डायरेक्ट फाइंड किया बेटा, और जितनी भी वैल्यू अंदर आएगी वो भी मैंने डायरेक्ट फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था देखते हैं, इसको कैसे फाइंड किया था, सबसे पहले 7 है तो इसको 7 को 1 करना है, तो देखो मैंने 1 किया या नहीं, डिवाइड बाय 7 पहले ही कर चुका हूँ, तो आगे भी डिवाइड बाय 7 करूंगा, 2 बाय 7, 0 बाय 7, 1 बाय 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा 24 बाय 7। डन। RHS तक ही जाना है, टीटा पे नहीं जाना है, ठीक है, टीटा तो फाइंड होता है, RHS डिवाइड करने से मिल गया। अब ये वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा मैं, अगेन 7 इंटू 5 क्या बताया, 35 माइनस 4 तो कितना हो गया 31 बाय 7, 21 माइनस 8। आई होप यू आर गेटिंग नाउ, साफ किया है मैंने इसीलिए, 21 माइनस 8 इज 13 बाय 7, करेक्ट ना। उसके बाद ये वाली वैल्यू फाइंड, पहले ये कर लेते चलो, 7 इंटू 0 तो ये हो गया माइनस 2 बाय 7, करेक्ट, फिर 0 माइनस 4 बाय 7, ओके। नाउ आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यूज, इससे पहले ये भी चाहिए तो कर लेते हैं, तो कितना हो गया 162 बाय 7। नेक्स्ट क्या आया 140, या कितना हुआ 44 बाय 7। आई होप एवरीवन इज ओके विथ दिस, कैन वी प्रोसीड, आर यू ऑल गेटिंग नाउ? Yes, sir. Put it Yes, in the sir. chat. Put it in the chat. Put it in the chat. Just for my confidence. Put it in the chat. Fast. Are we getting? Okay. Now we'll proceed. We'll proceed. We don't have much time, so we will proceed. Now look at this. इसका फिर जुगाड़ बताता हूँ। देखो हमने इसको मल्टीप्लीकेशन से फाइंड किया था ना, क्या मिला था मल्टीप्लीकेशन से वाली वैल्यू, देखो -15 इंटू क्या किया था हमने, देखो -15 इंटू 7 -105, प्लस क्या किया था, माइनस और माइनस प्लस हो गया 36, तो -69 बाय 7, करेक्ट, -69 बाय 7। इसको कैसे फाइंड किया था बेटा, सेम मल्टीप्लीकेशन से, क्या किया था मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 0, सॉरी ये देखेंगे, सॉरी ये है ना, ये वैल्यू है तो ये देखेंगे, 7 इंटू 0 0, माइनस ऑफ माइनस प्लस 18 हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय क्या किया हमने 7। डन। अब इसको जो मैंने फाइंड किया ना बेटा, इसको ZJ माइनस CJ से भी कर सकता था मैं, इसको ये जो नीचे मैंने फाइंड किया है, सॉरी ये जो मैंने नीचे बेटा फाइंड किया है, ये वैल्यू ZJ माइनस CJ से भी कर सकता था। देखो कैसे, इसको ZJ माइनस CJ से कैसे करता, कहाँ गया यार कर्सर, हाँ 0 इंटू 31 बाय 7 0, 18 इंटू 2 बाय 7 कितना होता 36 बाय 7, माइनस प्लस 0 इंटू 13 बाय 7 0, तो 18 इंटू 2 मतलब 36 बाय 7, माइनस किससे करूंगा 15, करेक्ट ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 36 बाय 7 जो भी वैल्यू है उसको माइनस क्या किया मैंने, उसको माइनस किया देखो 15, और उसको मैंने शिफ्ट दबा के फ्रैक्शन देखा, देखो -69 बाय 7 ही आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग, सेम आंसर आता है -69 बाय 7, ओके। तो जो मैंने मेथड बताया वो डायरेक्ट तुमको दे देगा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, रादर देन डूइंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे अगर ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, देखो अगेन 0 इंटू क्या किया मैंने -2 बाय 7, करेक्ट ना, फिर 18 इंटू 1 बाय 7 इज 18 बाय 7, ऊपर तो 0 है, इसके ऊपर 0 है या नहीं, तो देखो डायरेक्ट 18 बाय 7 आया या नहीं, ओके आ गया ना 18 बाय 7, हाँ या ना, हाँ थैंक यू। नाउ ये वैल्यू फाइंड करना है ना मुझे, यहाँ की ये वैल्यू देखो, ये कैसे फाइंड करूंगा, सेम तरीके से कैसे फाइंड किया था, देखो क्या था ये, इसके लिए यहाँ गया 0 इंटू 7 0, प्लस 18 इंटू 24 हो गया या नहीं, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, प्लस 18 इंटू 24 हो गया, इंटू डिवाइड बाय 7 किया तो कितना मिला था, ये मैंने फाइंड किया था, आई थिंक ये कितना मिल रहा था, ये 432 बाय 7। कैन एनीवन फाइंड दिस वैल्यू इन डेसिमल, 432 डिवाइडेड बाय 7 देखो कितना है, 60 डेसिमल में कितना है 61.71, 714 very nice 61.71। now we will get to the next value, next value निकालते हैं, next value कैसे मिलेगी। अब क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव, ये कब रोकना है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब पॉजिटिव हो गया, जितने भी ZJ माइनस CJ अगर पॉजिटिव हो गए ना तो रुक जाने का, कब रुकने का, जब ZJ माइनस CJ या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव, मतलब ZJ माइनस CJ नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। जब भी नॉन नेगेटिव होगा तो आइट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो आइट्रेशन स्टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ZJ माइनस CJ क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो देखो पहला ZJ माइनस CJ 0 है,
दूसरा -69/7 है, मतलब नेगेटिव हो गया, तीसरा 0, फिर 18/7, फिर 0। तो मोस्ट नेगेटिव एक ही है या नहीं? -18/7। सपोज करो ये भी नेगेटिव रहता तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा सेलेक्ट करता? -69/7। अगर सपोज करो ये 118 रहता तो क्या सेलेक्ट करता? -118/7। करेक्ट ना? मोस्ट नेगेटिव जो रहेगा वो मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है जो आइट्रेशन को आगे बढ़ा रहा है, तो वो मोस्ट नेगेटिव है। तो ये हो गया मेरा पाइवोट कॉलम। तो x2 क्या करेगा? अब एंटर करेगा। x2 क्या करेगा? एंटर। और लीव जो करेगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट ना? तो 162/7 डिवाइडेड बाय 31/7 इज 162/31। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लीविंग 7। करेक्ट ना? अगर मैं 7 रखता, मतलब उसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कर देता, तो बहुत मसले होते डिवाइड करने में। इसीलिए हमेशा इसको किस में रखने का? फ्रैक्शन में, ताकि हम इसको प्रॉपर यूज कर सके। तो 162/31, 24/7 डिवाइडेड बाय 2/7 कितना हो गया? 12। करेक्ट ना? फिर 44/7 डिवाइडेड बाय 13/7 कितना हो गया? 44/13। मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव क्या है? चेक करो। 44/13 देखो कितना है लीस्ट पॉजिटिव? 3.38 आ रहा है। 162/31 देखो कितना है? 5.22। तो लीस्ट पॉजिटिव क्या है बेटा? 44/13। 44। तो ये क्या करेगा? S3 क्या करेगा? लीव। एंटर कौन करेगा? X2। तो अब देखो आइट्रेशन क्या हो जाएगा? S1 वैसे ही रहेगा, X1 वैसे ही रहेगा, S3 के जगह कौन आ रहा है? S3 के जगह कौन आ रहा है? X2 आ रहा है। करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम साइड में क्या लिखते थे? Z के कोएफिशिएंट, जो मैक्सिमाइज के कोएफिशिएंट, इसका क्या है? 0। इसका मुझे पता है कोएफिशिएंट कितना है? 18। इसका कितना है? 15। ये किस लिए लगता है? ZJ फाइंड करने के लिए। पर हमने तो ZJ को डायरेक्ट जुगाड़ निकाल दिया ना। हम तो ZJ को इससे फाइंड ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं फाइंड करते? हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, हम मल्टीप्लीकेशन से काम कर लेते हैं। अब फिर से वही करेंगे। S1 देखो थर्ड नंबर पे 1 0 0। X1 क्या रहेगा? 0 1 0। करेक्ट ना? उसके बाद S2 क्या रहेगा? X2 0 0 1। और इसके ZJ माइनस CJ क्या रहते हैं बेटा? क्या रहते हैं? 0। तो इसके ZJ माइनस CJ पता चल गया या नहीं? कहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिख भी रहा है क्या? हाँ, ZJ माइनस CJ इसके 0 रहते हैं या नहीं? अब देखना है की एलिमेंट क्या है इसमें और इसमें। S3 और X2 में की एलिमेंट क्या बन गया? 13/7। तो अगर मुझे 13/7 को 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 13/7 से डिवाइड या तो 7/13 से मल्टीप्लाई। उल्टा बोलेंगे तो बेटर रहेगा। 13/7 से डिवाइड या 7/13 से मल्टीप्लाई। तो ये मैं 7/13 देखो 0 इंटू, ये देखो ये 0 इंटू 7/13 0 आया या नहीं? फिर 13/7 इंटू 7/13 1 आया या नहीं? फिर देखो ये 0 था ना, ये कितना था? ये 0 ही था ना? हाँ, तो 0 इंटू 0 था, ये मिट गया मुझसे कहीं से, सो सॉरी। 0 इंटू 7/13 अगेन 0 आया या नहीं? -4 इंटू 7/13 क्या होगा? -4/13। 1 इंटू 7/13 क्या होगा? 7/13। आगे तक जाते रहो। 44 इंटू 7/13 क्या रहेगा? 44/13। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। डन। नाउ वी नीड टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। तो ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए कहाँ जाऊंगा? यहाँ पर। तो देखो -26 होगा या नहीं? बाय 49। 49 को भूल जाओ, दिमाग में क्या रखो? -26 प्लस क्या करूंगा? प्लस क्या करूंगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो -26, सॉरी माइनस क्या कर रहा हूं मैं? -13 इंटू 2। ठीक है, प्लस क्या कर रहा हूं मैं? 31 इंटू 4। देखो कितना आ रहा? 98 आ रहा है। तो 98 डिवाइडेड बाय क्या है? 49 कितना हो रहा? 2। तो 2 इंटू 7/13 करूंगा या नहीं? तो 2 इंटू 7/13 कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 7/13, आई होप यू आर गेटिंग 14/13। ये क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये फाइंड करना, तो कहाँ जाऊंगा? यहाँ। 0.076। मैं पॉइंट में नहीं चाहता, मैं वही बोल रहा, फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन। इज इट राइट इन फ्रैक्शन? -26 प्लस 124 divided by 49 into 7 divided by 13 in fraction 14/13 आ रहा है। Is it right? बेटा at least let me know. Is it right?
इज इट राइट? चैट में बोल दो, कहीं तो बोल दो। इज इट राइट? शुड वी प्रोसीड? जी सर। नहीं, हाँ या ना? हाँ अब ये देखते हैं ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी। 13 हाँ हाँ 13 इंटू 1 डिवाइड बाय 49, और ये वाली वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये कैसे करूंगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8। तो 13 प्लस 8 21, 21 बाय 49, 21 बाय 49 इंटू 7 बाय 13। देखो कितना हो रहा, कितना हो रहा? 0.23। 3 बाय 13। ओके, ये वाली वैल्यू भी आ गई। 3 बाय 13 मिल रहा है मुझे, चेक कर लेना। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी मिली? 3 बाय 13। अब ये चेक करते हैं, ये देखो कितना आ रहा, कितना आ रहा? 13 इंटू 18, देखो कितना है? 13 इंटू 18 प्लस क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे? 69 इंटू 4, 510 डिवाइडेड बाय 49 बराबर 7749 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, देखो कितना आ रहा है? 13 इंटू 18 माइनस माइनस माइनस, सॉरी 13 इंटू 18, 3 माइनस है, माइनस 69 है, माइनस 4 है और एक और माइनस रहेगा, तो माइनस 69 इंटू 4 डिवाइड बाय 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13। कितना आ रहा है देखो? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? 13 इंटू 18 माइनस 69 इंटू 4 डिवाइड बाय 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13, माइनस 6 बाय 13 आ रहा है। इज इट राइट? इज इट राइट? इज देयर एनीवन हु इज लिसनिंग? शुड आई स्टॉप द लेक्चर? या अल्लाह, is there anyone who is listening? I am stopping the lecture. I want to hear from you. Are you getting what I am explaining? Yes, sir. हाँ Okay. हाँ Okay, तो माइनस 6 बाय 13 आ गया। जल्दी से ये फाइंड करते हैं, ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगा, माइनस 31 बाय 7, 0 माइनस 31 बाय 7 इंटू 7 बाय 13, माइनस 31 बाय 13 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ये वैल्यू फाइंड करना है, 0 आ जाएगा, माइनस 2 बाय 7, माइनस 2 बाय 13 आ रहा है। अब ये फाइंड करना है, ये वैल्यू कैसे मिलेगा? 0 माइनस 69 बाय से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओके, प्लस 69 बाय 7 इंटू, तो ये आ जाएगा 69 बाय 13। अभी भी नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव? कौन है नेगेटिव? कौन है नेगेटिव? माइनस 6 बाय 13, मतलब कौन आ रहा है? S1 S2 है ना, तो S2 अब एंटर करेगा, किसके जगह एंटर करेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू RHS हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 162 इंटू 13 करेंगे, 162 इंटू 13, ओके, 162 इंटू 13 माइनस 44 इंटू 31, ठीक है, जो भी वैल्यू आई डिवाइड बाय 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13, I am getting 106 by 13. This is coming out to be 106 by 13. This is coming out to be 106 by 13. Okay, next क्या करना हमको? नेक्स्ट क्या करना? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी। ये वाली वैल्यू के लिए कहाँ जाएंगे? अगेन 24 इंटू 13, 24 इंटू 13। नेक्स्ट क्या करेंगे? 44 इंटू 2, करेक्ट है, 24 इंटू 13, 44 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। कितना मिल रहा देखो, कितना आ रहा है यार, एक गलती हो गई मेरे से, जल्दी देखो। 24 इंटू 13 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13, वॉट एवर इज माई आंसर, 32 बाय 13 मिल रहा है। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 32 बाय 13। अब ये RHS को किससे डिवाइड करेंगे? इससे, तो ये आ जाएगा 106 बाय 14, ये आ जाएगा 32 बाय 3। ये क्या आ जाएगा? देखो ये क्या आ जाएगा?
44 बाय, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ नेगेटिव है या नहीं, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, नेगेटिव है या नहीं, तो कभी भी नेगेटिव या जीरो रहता हो तो डिवाइड नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, थीटा इज नॉट पॉसिबल इफ इट इज डिविजिबल बाय जीरो और बाय एनी नेगेटिव नंबर वी कैन नॉट टेक थीटा. तो सिंस इट इज माइनस, you can see since this is minus, तो we cannot divide 44 by 13 divided by minus 4 by 13. Get it? ठीक है, तो अब जो वैल्यू बची उसमें देखो सबसे कम कौन है, 106 by 14 करके देखते हैं कितना हो रहा है. 106 by 14 7.57. 8.15. कितना? 8.15. कौन सा? 7.57. नहीं सर 7.57 ही है. ना, तो S1 एलिमिनेट होगा या नहीं, और एंटर कौन होगा S1 की जगह, कौन एंटर होगा, S2, करेक्ट ना? Yes. S1 की जगह एंटर होगा S2. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, S2 आएगा, X1 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, X3 आएगा, S2 की वैल्यू क्या है 0, X1 की 18, इसकी 15, नेक्स्ट क्या लिखेंगे ZJ माइनस CJ, नेक्स्ट क्या लिखते थे X1 पहले नंबर पे है या नहीं, S2 कहाँ पर है, S1 यहाँ लिखना है तो लिख देता हूँ मैं, X1 X2 S1 S2 S3, तो S2 सेकेंड फर्स्ट पे है या नहीं, तो फर्स्ट पे है तो क्या आएगा 1. So we'll start from where we ended. This value was found 69 by 13. We know that this value is minus 16 by 13. So what do we know? Since all Zj minus Cj should at least be greater than or equal to 0, until and unless it is not there, we have to proceed. Okay, so what we will do, we will try to find this value of Zj minus Cj. Now how to find this value? To find this value, one second. To find this value, we have to go up. Okay, we will go up, and to find this value, what we will use this term. Okay, so what is the term? One is 13 by 7 into 432 by 7 minus of minus will become plus of 69 by 7 into 44 by 7. So I will do that calculation. 13 into 47 into 7 will be 49. So I'll keep the denominator constant. 13 into 432 minus of minus plus 69 into 44 divided by 49. Is it right? Am I doing it right? Am I doing it correctly? Yes. Okay. Into what I'll do is 7 by 13. So I've got the value 95.07. The value that I've got here is 95.07. Okay. I've done the calculation. What I've done is 13 by, I'll just put it again, 13 by 7 into 432 by 7 minus of minus plus 69 by 7 into 44 by 7. Total aane ke baad I will do into 7 by 13 because this is my key element. Okay, so I got this value 95.07. Now what I'll do is, I've got all the values. I could have founded this value by another method also. What would have been my method? देखो, एक तो है कि आई डू कैलकुलेशन. अब मुझे पता है ये लाने के लिए काफी बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहां से भी जा सकता हूँ. 0 into 106 by 13 plus 18 into 32 by 13 plus 15 into 44 by 13. इसको भी अगर मैं करूंगा तो आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों का मतलब सेम है. तो ट्राई करके देखते हैं, होपफुली सही रहेगा. 82 into 13, 13 into 13 है डिवीजन में, रहने देता हूँ, प्लस 15 into 44, ओके, डिवाइडेड बाय 13. तो आई एम गेटिंग द एग्जैक्ट सेम आंसर 95.07 क्योंकि दिस इज ZJ और इसका CJ क्या रहता है, RHS का CJ मैंने पहले ही बताया, RHS का CJ क्या रहता है, 0 रहता है. ओके, तो वी डोंट हैव टू वरी, वी कैन इवन डू दिस कैलकुलेशन. व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? We can do 18 into 32 by 13. If you find that calculation difficult, you can use the same calculation, this calculation also to find. So to find for huge number, you can use either of the calculation. If you are not comfortable with cross multiplication, just like in this case where the number is very huge, you can directly do what? You can directly multiply. For all other values, it is better and it is preferable to do multiplication, because if you go this way, this into this plus this, see, suppose I want to find this value, minus 6 by 13. So what I'll do, 0 into 14 by 13, 18 into 3 by 13, plus 15 into minus 4 by 13. I'll get the same value, minus 6 by 13. तो ये find करने के लिए ठीक है,
ये जितनी भी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना डिनोमिनेटर में, नीचे जितनी भी है वो सब ठीक है, पर ये सब फाइंड करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा पूरा टेबल फाइंड करने के लिए, समझ रहे? तो पूरा टेबल ये भी पूरा फाइंड करने के लिए, तीनों वैल्यू ये सब वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटर क्या है, आई विल मेक कॉमन मेथड एंड आई विल यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरीथिंग। ओके, so that is preferred. Use matrix multiplication, but if you find some values very difficult and if you can do it by another method, try it at another method. So what we have got from this is the minimum, minus 6, 106 by 14. This is the minimum value, least minimum positive. So we know that S1 will leave out, and what will enter is, we know that this row is S2. So S2 will enter instead of S1, S2 will enter. So this is S2, then this will be X1, then this will be X2. Okay, now we know S2 is at the top position, so it will be coming as 1 0 0, then X1 will come as 0 1 0, and X2 will come as 0 0 1. Now what do we know more? I'll just put it, what do we know more? That we know that Zj minus Cj of all the basis variable in the equation, will have the Zj minus Cj as 0. So I know that my Zj minus Cj for all basis variable will be equal to what? 0. Done. Now I have to find what is the pivot element. So this is my row. I hope this is my row, and this is my this is my column, and this is my row. So I will get to know that this is my pivot element. So I have to make this pivot element 1. This is already 1 because I know that this row will have 1 0 0. But if I was not knowing, what would have I done? I would have multiplied it by 13 by 14. So what will happen to this number? 0 into 13 by 14 will be 0. 0 into 13 by 14 will be 0. 1 into 13 by 14 will become 13 by 14. Okay. 14 by 13 into 13 by 14 is 1. Okay. Minus 31 by 13 into 13 by 14 will be minus 31 by 14. I hope you're getting. We are just about to end the lecture. We are just on the verge of getting the solution. Now I need to find this value. To find this value, I'll go here. Okay, what I'll do, 14 by 13 into 0 is 0. This is plus, so 1 minus will come. So 3 by 13 into 13 by 14 will be how much? 3 by 13 into 14 by 13 will be 14 by 3. No, just let me check. 3 by 13, this is 0. This will not count for any value. So I have to multiply this. Minus 3 by 13 into 13 by 14 will be minus 3 by 14. Okay, so I have got this value. Now what I'll do for this, I will multiply this with this number. Again, it will be 0. Now this is minus. So minus minus plus. Plus 4 by 13 into 13 by 14 will be 4 by 14. Someone is asking something in the chat. Let me check. Same doubt. Sir, 14 by 13 is key element. Yes, 14 by 13 is key element. Key element कैसे मिलता? की एलिमेंट मिलता है पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो से। तो पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो का की एलिमेंट क्या है? पाइवोट रो, अगर मैं ये कॉलम बनाऊं, दिख रहा है ये कॉलम और ये रो का कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट क्या है? क्या है बेटा? I hope you got it. Have you understood? Please reply in the chat, Shehzad and Altamash. Pivot row and pivot column का key element मतलब common element क्या है? Okay. Okay, thank you. Key element change होता रहेगा position by position. Copy मत करो उसको. Okay, तो now what do we need to find? और क्या find करना है? चलो ये find करना है. ये कैसे मिलेगा? इसके लिए यहाँ जाऊँगा. -28, 169 रहेगा. 13 into 13 दिमाग में कैलकुलेशन करके ले लो. -28 प्लस क्या करूंगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. प्लस 93, क्योंकि 31 into 3 is 93. तो -28 प्लस 93, -28 प्लस 93, 65 आ रहा है. ठीक है, डिवाइड बाय 169 है. ठीक है, इनटू क्या है? इनटू 14, 13 by 14 है या नहीं? क्योंकि 1 करना था ना उसको, तो 13 by 14 कर दिया. फ्रैक्शन ले लिया. फ्रैक्शन लेने पे आंसर आ रहा है, एक सेकेंड. फ्रैक्शन लेने पे आंसर कितना आ रहा था यार? एक सेकेंड यार, आई मिस दैट आंसर. क्या था वैल्यू? कहाँ थे हम? हाँ, कहाँ थे हम? हमको ये फाइंड करना है. हाँ, -65 by 169.
okay, into 13 by 14. Can anyone tell me the answer? 5 by 14. So nice. Thank you, Iltam. Thank you. So this is coming out to be 5 by 14. Now what do we need to do next? 5 by 14. What do we need to do next? We need to find this term. To find this term, we will go here. 14 into 7, 14 5s are 70. So 84, 98, 98, and then this term minus. You can see this minus, minus, and one more minus will come. So 98 minus 124. 98 minus 124 divide by 13, 13, 69, 169. ठीक है, तो what I'll do into 13 by 14, what I'll take is minus 1 by 7. It is coming out to be, you can check for yourself. Okay, you can check for yourself. It is coming out to be minus 1 by 7 as per my knowledge. Now what do we need to find? देखो, what do we need to find? We need to find this. तो इसके लिए 0 into this is 0. फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या नहीं? 6 by 13 into 13 by 14. तो what will remain is 6 by 14. Now we need to check this. ये पॉजिटिव आ गया तो रुक जाएंगे. तो ये देख सकते हैं 69 into 14 माइनस माइनस दिख रहा है ना? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के रो का ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे. तो 69 into 14 माइनस 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 3 बार माइनस है. तो 69 into 14 माइनस 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 विल बी माइनस. 31 into 14 or 4? 31 into 6. Okay. Okay. Divide by 169 क्योंकि 13 into 13 है. Into क्या कर दिया? 13 divided by 14. I'll just take it into fraction. 30 by 7 आ रहा है. Please check it for yourself. I'm getting it to be 30 by 7, which is positive. So since all the numbers are positive, I can stop my iteration. But what do I need to find? I need to find this value. क्योंकि ये क्या बताता है मैं आगे बताऊंगा. ये फाइंड करना जरूरी है. स्टॉप करके क्या करूंगा? वैल्यू चाहिए ना. तो ये कैसे मिलेगा? ये तो डायरेक्ट मिल सकता था. ये कैसे मिलता? 106 into 13 by 14 कितना होगा? 106 by 14. ये तो डायरेक्ट मिल रहा था ना. ये तो डायरेक्ट ही निकालना रहता है. ये कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएगा. जो पाइवोट रो रहता है ना, उसकी सब वैल्यू उसको 1 करने से आती है. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कभी नहीं ला सकते. याद रखना, ये हमेशा गलती होती है. बच्चे इसको फाइंड करने के लिए, ये टर्म को फाइंड करने के लिए यहां पर जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करने लगते हैं. नहीं कर सकते तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहीं पर है वो वैल्यू. ओके, तो आप क्या करोगे? 13 by 14 से मल्टीप्लाई करोगे. उसको पाइवोट को 1 किया है तो उससे उसके लिए क्या करोगे? जो भी फैक्टर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 106 by 14. नाउ आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट? ये अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ जाऊंगा. तो क्या होगा? 32 into 14. तो 32 into 14 और ऊपर जाएंगे फिर माइनस 118. करेक्ट. 106 into 3. तो जो भी वैल्यू आया डिवाइड बाय क्या किया? 169 इंटू क्या किया? 13 डिवाइडेड बाय 14. देखो फ्रैक्शन में कितना है? 165 by 91. चेक करो सही है क्या? एक बार चेक करो. 32 into 14. 32 into 14 माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, प्लस है वो. इज इट राइट? हाँ, प्लस हो जाएगा ना वो. सो सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग. ये वैल्यू फाइंड करना है ना. नहीं, माइनस बराबर है आई थिंक. चेक इट. क्या आ रहा है बताइए मुझे चैट में. चैट में बताइए. चैट में बताइए वो वैल्यू क्या आ रही है. 32 into 14 माइनस 106 into 3 divided by 169 into 13 divided by 14. Yes, I am getting it correctly. 0.7142. I think 0.71428 आ रहा है और इसको मुझे फ्रैक्शन में करना है. देखो कितना आ रहा है फ्रैक्शन में, बताइए. 0.7142 आ रहा है. Anyone? Yes, 5 by 7. So nice. So nice. Thank you. 5 by 7. Now we need to find this value last. So 44 into 14. 44 into 14. Then we will look for this value. माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस माइनस एक और माइनस प्लस कर देगा. तो प्लस 106 into 4 डिवाइडेड बाय 169 into 13 डिवाइडेड बाय 14. 5.71 आई एम गेटिंग. फ्रैक्शन में देख लेते हैं. 40 by 7. ओके.
Is it okay? Okay, thank you. 40/7 is very important. Now we need to find this value. अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे ना, मैं दूसरा वाला यूज करता हूँ, वो आसान लगता है मुझे। यहाँ पर 0, 18, 15 इसको फाइंड करने के लिए सिर्फ मैं ये यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ ऊपर भी माइनस नहीं करना पड़ता। तो 18 × 5 डिवाइड बाय 7 है उसमें भी, प्लस 15 × 40 टोटल डिवाइड बाय 7। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 690/7. Okay, what I am getting is 690/7. Done. This is our question. Now we have got all the answers. Now I will compare my answer. This was the answer that we got through. This was the answer that I got through graphical method. So what I'll do is I will try to use graphical method right now. No, I will not use. I will try to compare the answers of graphical method with the answers that you have got. One second. This is trouble. So sorry. What I am trying to take, what it is coming. Give me a second. Why is it not copying? ड्रैग नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ड्रैग नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, मैं ये वैल्यू उठा लेता हूँ। हमको कुछ आंसर मिल गया ना, अब सिर्फ एक काम करना है, वो आंसर्स को कंपेयर करना है, आगे वैल्यूज ध्यान देते हैं। देखो एक आंसर क्या था इसमें एक आंसर क्या था 0,0, राइट, और z क्या था इसका, z क्या था 0। अब यहाँ पर देखते हैं टेबल में पहले आइट्रेशन पे जाते हैं। पहले आइट्रेशन में S1 था, S2 था, S3 था। तो जब पहले आइट्रेशन में S1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, पहले आइट्रेशन में क्या क्या है, S1, S2, S3, और S1 की वैल्यू क्या थी, S1 की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, S2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखिए ना 0, S3 क्या लिखा है साइड में 0। ठीक है, और Z क्या था, Z क्या है वो भी बताता मैं। Z क्या रहता है, जो ZJ माइनस CJ रहता है ना, ZJ माइनस CJ, जो भी ZJ माइनस CJ रहता है, दिख रहा है, वो ZJ माइनस CJ हमारा क्या रहता है, Z रहता है। ओके, तो पहले आइट्रेशन में अगर ध्यान दे तो S1 की जो वैल्यू है ना बेटा वो 30 है, S1 की वैल्यू 30 है, S2 की वैल्यू 24 है, S3 की वैल्यू क्या है 20 है। X1 नहीं मेंशन्ड है तो X1 क्या रहेगा 0, X2 क्या रहेगा 0, और ZJ माइनस CJ से Z कितना आया, Z कितना आया 0। तो देखो ये हमारा एक सॉल्यूशन था या नहीं ग्राफिकल में पहला सॉल्यूशन क्या था, देखो ना, X1 क्या है 0 बराबर, X2 क्या है 0 और Z क्या है 0। पहले में अपना स्लैक आ रहा है, मतलब पूरा की पूरा वेस्ट हो रहा है। स्लैक का मतलब क्या था, कोई चीज जो अनयूटिलाइज जा रही है। तो कौन सी चीज अनयूटिलाइज जा रही है, पूरा की पूरा कंस्टेंट क्या है, अनयूटिलाइज जा रहा है। कोई चैट कर रहा है, एक मिनट सर, ये लास्ट सॉल्यूशन में बेसिस वेरिएबल नहीं निकालना है ना, ड्यू टू, हाँ नहीं निकालना है, नेगेटिव नहीं आया तो रोक देना, आइट्रेशन हो गया, अपना सॉल्यूशन आ गया। तो S1, S2, S3 0 मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। पहले में S1 क्या है 24, S2 क्या है 30, 24 और 20, इसका मतलब है पूरा की पूरा जो हमारे रिसोर्स है वो अनयूटिलाइज्ड है, इसीलिए X1, X2 क्या है 0। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। दूसरे आइट्रेशन में ध्यान देना, दूसरे आइट्रेशन में S1 कितना था 162/7, X1 कितना था 24/7 और S3 कितना है 44/7। तो मेन इंपॉर्टेंस कौन सी वैल्यू है, X1 आ गया या नहीं, X1 कितना आया 24/7, वो दोनों छोड़ देते हैं, वो जरूरत नहीं है। देखो X1 कितना आया 24/7, तो S1 S2 तो चाहिए नहीं क्योंकि वो सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो X2 क्या है 0। अब 24/7 को डेसिमल में करो, देखो कितना आता है 24/7, देखो कितना है 3.43 आ रहा है, 3.428। देखो 3.428, 0 कोई नंबर था या नहीं, था कि नहीं, और उसका Z कितना था देखो 61.71। तो इसमें देखो Z कितना है, देखो ना ये Z, ये हमको मिला या नहीं, ये वाली वैल्यू 432/7 डिवाइड करके देखो, 432/7 एग्जैक्ट 61.71 आ रहा है। ठीक है, तो हमको ये आंसर मिल गया या नहीं, क्या मिला Z, दूसरे वाले से हमको Z कितना मिला 61.71। कोई चैट कर रहा है, लेट मी सी।
एग्जैक्ट आ रहा है। ओके, अब ध्यान देते हैं, तीसरे आइट्रेशन पे जाते हैं। तीसरा आइट्रेशन क्या था हमारा? तीसरा आइट्रेशन ये 2 हो गए। नेक्स्ट हमने तीसरा किया था नीचे डायरेक्ट। देखो तीसरे में क्या था? S2 कितना है? S2 का मतलब क्या है? अनयूटिलाइज्ड है या नहीं? S2 कितना है? 106/14 रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड है। X1 कितना है बेटा? 5/7। X2 कितना है? 40/7 और 690/7 Z है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो X1 कितना है? 5/7 विच इज नथिंग बट 0.71। ठीक है, X2 कितना है? 40/7 विच इज नथिंग बट 40/7 कितना रहेगा? 5.71। और Z कितना है? 690/7 डिवाइड करके देखो, इसका आंसर आता है 98.57। आई होप यू आर गेटिंग। तो देखो अपना जो ग्राफिकल मेथड से जो आंसर आया था, ग्राफिकल मेथड से जो आंसर आया था और इससे जो आंसर आया, दिख रहा है ये आंसर? इससे जो आंसर आया वो सेम आया या नहीं? कंफर्म सेम आया। एक और अच्छी चीज क्या पता चाहिए? स्लैक पता चला है, S2। S2 का मतलब है अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स कितना है? 106/14। देखो इसका मतलब S2 कौन सी इक्वेशन में यूज किया था हमने? फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन में यूज किया था? फर्स्ट या सेकेंड? याद करो, सेकेंड इक्वेशन में यूज किया था, बराबर। अब ध्यान देते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमारी थी किसकी? सेकेंड इक्वेशन हमारी थी प्रोसेस 2 की। देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी किसकी थी? प्रोसेस 2 की। तो ये क्या बता रहा है? प्रोसेस 2 में कुछ रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड है। वो कितनी वैल्यू है? 106/14। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 106/14। 7.57 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स जो है ना, सेकेंड वाले में अनयूटिलाइज जा रहा है। ये भी मुझे पता चलता है, इससे काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि कितना रिसोर्स अनयूटिलाइज जा रहा है, स्लैक बन रहा है। और S1 क्यों नहीं अनयूटिलाइज्ड है? क्योंकि फाइनल आइट्रेशन में S1 बचा ही नहीं है। फाइनल आइट्रेशन में S2 है, X1 है, X2 है, S1 नहीं है, तो S1 ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? 0। S3 नहीं है तो S3 क्या रहेगा? 0। मतलब पहली और सेकेंड जो कंस्ट्रेंट है, पहला प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस पूरा यूटिलाइज हो रहा है। जो सेकेंड वाला, पहला और थर्ड प्रोसेस, जो सेकेंड वाला प्रोसेस है उसमें हमको स्लैक मिल रहा है, उसमें हमको क्या मिल रहा है? मटेरियल बचता हुआ मिल रहा है, जो भी कंस्टेंट है हमारा बच रहा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अगर आपको समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो इसमें हमने 4-5 पॉइंट फाइंड किए, इसमें हमने सिर्फ 3 आइट्रेशन में सॉल्व कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बतानी है, बस खत्म करता हूं लेक्चर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि वाई टू यूज एलपीपी, मतलब वाई टू यूज सिंप्लेक्स। क्या मजा आ रहा है सिंप्लेक्स करने में? ये इंपॉर्टेंट है, सिंप्लेक्स करने में मजा ही क्या है? एलपीपी मतलब जब हम एलपीपी को ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं, एलपीपी को जब हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वेशंस कितनी भी रहे, अनलिमिटेड इक्वेशन चलेगा, इक्वेशन इनफाइनाइट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? नंबर ऑफ वेरिएबल जो रहते हैं ना, वो 2 के ऊपर नहीं जा सकते। इट शुड बी इक्वल टू 2, लेस भी नहीं चलेगा, इट शुड बी इक्वल टू 2, बराबर। नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 के ऊपर गया तो ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व हो सकता। तो ग्राफिकल से इनफाइनाइट इक्वेशन तो ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन 2 हो गए तो हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज करो 2 ही कंस्ट्रेंट इक्वेशन है और 3 फूड प्रोसेसिंग है। सपोज करो 3 आइटम तुमको बनाना, एक है X1 आइटम बनाना, एक X2 आइटम बनाना, एक X3 आइटम बनाना, बराबर। 3 आइटम्स तुमको बनाने, तो तुम्हारी इक्वेशन जो बनेगी ना, X1 प्लस X2 प्लस X3 के टर्म में बनेगी। यानी सपोज करो 2 प्रोसेस है, एक है प्रोसेस 1, एक है प्रोसेस 2। तो पहली इक्वेशन तुम कुछ बनाओगे, सपोज करो लेस के टर्म्स में तुमने बना दिया, कुछ इक्वेशन तुमने बना दी, बराबर। दूसरी इक्वेशन भी तुमने कुछ बना दी, सपोज करो ऐसे कुछ इक्वेशन है, इसमें X2 नहीं लग रहा, बराबर। अब तुमको अगर इसको सॉल्व करना है तो तुम इसको ग्राफिकल से कतई सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाई यू कांट सॉल्व इट बाय ग्राफिकल? क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3। हम स्लैक डाल के और बढ़ा देते हैं एलपीपी पे, पर ग्राफ में तो इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई थिंक you might have understood what I was trying to explain.